Hello friends, today we would be discussing about blockchain technology. Welcome to Affairs Akhada. So in this series of blockchain technology, this is the first video. This video is basically an inquiry into what this technology is all about, the basics of this technology. This series is brought to you by me. My name is Kovid Verma. Next, I would like you all to think of a scenario. So in this scenario, you need to imagine that there is a class and there is a class teacher. We have 26 students. Each student has one pencil. Each pencil has a different color. So there are 26 pencils with different colors. The teacher decided to give all the students a classwork. It was a very simple classwork. They just needed to write from A to Z. Students were literally exhilarated and their mood was like, high five to all those people who have seen this video. This is from a Rajinikanth's movie. But teacher decided to give an extra element to the classwork. That extra element was each letter should be of a different color. So there are 26 letters. 26 letters would be written from 26 different colors. Okay. At this time the student's reaction was like, whatever. Okay. Then teacher started pushing their buttons. Each student would write in turns. हर स्टूडेंट तभी लिखेगा जब उसकी बारी आएगी. अच्छा, एक बारी में वो सिर्फ एक लेटर लिखेगा, मतलब एक लेटर लिख लेगा और फिर बाकी जो आगे के 25 स्टूडेंट्स हैं उनकी बारी आएगी, फिर बाद में जब पहले स्टूडेंट की बारी आएगी तब वो लिखेगा. तो ईच स्टूडेंट वुड राइट द लेटर इन वन टर्न. ओके. Or the student will be given freedom to write alphabets in any order. So you can write in A, B, C, D, E, F, G or whatever order. You can start from Z, you can end to A, whatever your order can be. It is up to you. You have been given the freedom. Okay. At this point students were like, why this Kolavari D? Just kill me. Okay. So teacher decided to make it more hard. She said that all your assignments would be kept in the cupboard forever and ever. And even if you come after 20 years, you should be able to check whether there was any mistake in the assignment. Teacher was very clear. She removed any element of memorization in this particular I'm sorry for that. She wanted to remove any aspect of memory in this particular assignment. So she wanted students to come up with a system in which you can check whether there was a mistake or not. Okay. At this point of time students were outrageous. They were like full of rage. Why are you making our lives so tough? Then she decided to take it a bit far. More than a bit far. If there is any one student who writes two or more letters with same color, then that student fails and the whole class fails. So it's all or none situation. If one fails, then all fail. Simple as that. She made it very clear. So basically this assessment is collective. It's not at all individual. At this point students were like, just throw the table. But उनको समझ में आया कि क्लास में अथॉरिटी किसकी होती है, टीचर की होती है. तो उन्होंने ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसको लिखना चालू किया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट this is basically where I tell you about what are the different aspects of this particular problem. So the first aspect is the students need to write from A to Z. Different color for
ईच लेटर इन अ सिंगल असाइनमेंट। एक असाइनमेंट में जितने भी A to Z लिखा रहेगा, हर लेटर अलग अलग कलर से लिखा रहेगा। देन यू नीड टू राइट इन टर्न्स। हर स्टूडेंट का जब टर्न आएगा, जब बारी आएगी उस स्टूडेंट की, तभी वो स्टूडेंट लिख पाएगा या लिख पाएगी। एक टर्न में आप सिर्फ एक लेटर लिख सकते हो। आप कैसा भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम A to Z, फ्रॉम Z to A, या रैंडम ऑर्डर, एनी ऑर्डर। इफ वन फेल्स देन ऑल फेल, सो इट्स एन ऑल और नन सिचुएशन। And lastly, verification should be possible even after 20 years. यहाँ पे मेमोरी का खेल नहीं है, there should be a system. Okay. तो let us talk about what makes this problem hard. What is the stuff that makes this problem so hard? तो अच्छा चलो ठीक है, if we consider each letter as a piece of data, so how many pieces of data do we have in this particular scenario? If one letter is one piece of data, so there are 26 letters and there are 26 assignments, so we have 26 into 26, that is 676 pieces of data. Now what is our task? It is to track each of the 676 pieces of data for their validity. We need to see whether the data is valid or not. What do you mean by validity in this particular scenario? Validity here means all 26 letter written in each assignment. हर assignment में A to Z सारे के सारे letters होने चाहिए। अब वो किसी भी order में हो सकते हैं। हर letter should be written from a different color. हर letter का एक different color होएगा। हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि 26 स्टूडेंट्स के पास अलग अलग कलर की पेंसिल है, तो 26 लेटर्स जो हैं वो 26 डिफरेंट कलर से लिखी रहनी चाहिए। ईच स्टूडेंट शुड वेट फॉर हिज और हर टर्न। अपनी बारी पे ही स्टूडेंट लिख सकता है और अपनी बारी में एक ही लेटर लिख सकता है। जब जब बारी आएगी तब तब लेटर लिखेगा। अच्छा, और ट्रैक का मतलब क्या है यहाँ पे? What we mean by track is even after 20 years you should be able to check the validity of this data, of these pieces of data. ठीक है? That is why this problem is very hard. Okay. चलो ठीक है, अब काम पे लगते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लिखना तो चालू करें। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबका रोल नंबर के हिसाब से हम सबको टर्न देते जाएंगे। ओके, तो रोल नंबर पहले 3 जो रोल नंबर है हम उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट रोल नंबर आरुषि, सेकंड अमित, थर्ड इज बब्बन। तो फर्स्ट रोल नंबर 1 इज आरुषि। आरुषि ने क्या लिखा? आरुषि ने ए लिखा। ए किससे लिखा? ब्लड रेड कलर से। ठीक है। फिर रोल नंबर 2 अमित ने डी लिखा। रोल नंबर 3 बब्बन ने क्यू लिखा। ठीक है, दिस इज सिंपल। जो प्रॉब्लम दिया गया है उसी को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब रोल नंबर 1 आरुषि अपने पेज पे उसने पहला लेटर लिखा ए। अगर मैं इस एंट्री की इंफॉर्मेशन करूं, ये जो एंट्री की गई है इसकी मैं इंफॉर्मेशन अगर करूं, तो इसके क्या क्या, इसके बारे में मैं क्या क्या बता सकता हूं कि दिस लेटर इज ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखा गया है यहाँ पे। What is the color of this letter? It is blood red. Okay. Whom is it written by? It's written by Arushi. इसका रोल नंबर क्या है आरुषि का? रोल नंबर 1। अच्छा, आरुषि का कौन सा टर्न है? It is the first turn for आरुषि। अच्छा, क्लास में ये कौन सा टर्न है टोटलिटी में? तो दिस इज द फर्स्ट टर्न इन द क्लास। चलिए, we can prepare similar information for Amit as well, for this particular second piece of data as well. तो letter D, the color is light indigo, it's written by Amit. Roll number is 2. Turn number for Amit, it's first turn for Amit. Turn number in totality, it's second. First turn जो है आरुषि का हो चुका था, अब ये second turn है। ऐसे ही हम बब्बन के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये 3 एंट्रीज हुई हैं। ठीक है,
3 पीसेज ऑफ डेटा के लिए 3 एंट्रीज हुई हैं और तीनों एंट्रीज में जो जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट मेक्स दिस एंट्री यूनिक। हम अगर पूरा का पूरा असाइनमेंट भी कंप्लीट कर दें, सब लोग अगर A to Z लिख भी लें, तो भी हमारे पास जितनी भी एंट्रीज रहेंगी उनका जो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है वो अगर लिखेंगे तो इट वुड बी वेरी यूनिक। 676 pieces of data, 676 pieces of information, unique information। ठीक है, so far so good, okay। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, चूंकि ये इंफॉर्मेशन यूनिक है, तो अगर इस यूनिक इंफॉर्मेशन से हम एक नाम बनाना चाहें, अगर हम एक की बनाना चाहें हर एंट्री के लिए, ये एंट्री नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो हर एंट्री के लिए अगर मैं एक की बनाना चाहूँ इस एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो वो की भी काफ़ी एक्सक्लूसिव होगी। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। इसका की क्या हो जाएगा? ABDRD AA111। देखिए, पहले मैं की बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर की। ठीक है, सो यू विल हैव टू बेयर विद मी फॉर अ व्हाइल। सेकेंड इंफॉर्मेशन की क्या की रहेगी? दिस वुड बी द की, और ऐसी थर्ड की, दिस वुड बी द की। ओके, आप में से कुछ लोगों को या शायद ज़्यादातर लोगों को ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि व्हाट इज़ द लॉजिक, why is this key written in such a manner। ठीक है, यहां से हम एक चीज तो देख पा रहे हैं कि 3 पीसेज ऑफ डेटा हैं और उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो 3 अलग अलग कीज बनी हैं, दे आर एक्सक्लूसिव। हर एंट्री का एक एक्सक्लूसिव की है, हर एंट्री का एक एक्सक्लूसिव चाबी है। ठीक है, I want you guys to understand, to identify the logic behind the construction of this key। तो if you want, you guys can pause this video, क्योंकि next slide में मैं बताऊंगा कि की construct कैसे किया है। ठीक है, ओके। तो what we have done is we have taken initials and ends of the information given here in this block। तो A हो गया, A हमने यहाँ पे लगा दिया, BDRD BDRD, फिर AA हमने यहाँ पे लगा दिया, देन रोल नंबर 1 यहाँ पे लगा हुआ है, देन अगेन टर्न नंबर 1 फॉर आरुषि और टर्न नंबर इन टोटल यहाँ पे लगा हुआ है। उस हिसाब से हमने ये की बना दी है। तो एज वी कैन सी देयर इज अ सर्टेन लॉजिक थ्रू विच अ की इज कंस्ट्रक्टेड। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, कुछ लॉजिक होता है जिसके हिसाब से हम एक की को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो टाइम टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने जो 3 ब्लॉक्स लिए थे उसमें हम एक नया पीस ऑफ डेटा इंक्लूड कर दे रहे हैं, एक नया इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दे रहे हैं। वो क्या है? की ऑफ द प्रीवियस एंट्री। तो अब आप ये सोचो कि इससे पहले क्या कोई एंट्री हुआ था? नहीं हुआ था। अब अगर नहीं हुआ था तो की ऑफ द प्रीवियस एंट्री में यहां पे क्या आएगा? कुछ नहीं, नन। अच्छा, इस एंट्री के पहले ये वाली एंट्री हुई थी, तो यहां पे की ऑफ द प्रीवियस एंट्री में क्या आ जाएगा? प्रीवियस एंट्री का की आ जाएगा। तो इस एंट्री का जो की है वो यहां पे आ जाएगा। ओके, ऐसे ही बब्बन के लिए अगर बात करें तो की ऑफ द प्रीवियस एंट्री जो इस पर्टिकुलर एंट्री की थी वो यहां पे आ जाएगी। अब हमने सबसे पहले क्या बोला था कि जो भी इस बॉक्स के अंदर रहता है उसके बेसिस पे हम की कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी अभी हमने की ऑफ द प्रीवियस एंट्री को भी इस बॉक्स में इंक्लूड कर लिया है, तो जाहिर सी बात है we'll have to include this piece of information within the key we construct। इसमें तो because there is no previous entry, तो यहाँ पे की वही रहेगी जो पहले थी।
इस वाले केस में बिकॉज देयर इज अ प्रीवियस एंट्री और वो प्रीवियस एंट्री की की को हम इंक्लूड कर चुके हैं, दैट इज वाई व्हाट आई एम डूइंग इज इंक्लूडिंग दिस की हियर इन द न्यू की। ओके, ऐसे ही आप यहां पे देख पा रहे हो मैंने क्यों पुरानी वाली की को इंक्लूड कर दिया यहां पे, क्योंकि की के कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बॉक्स में दी हुई है उसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, नाउ फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, अब आप ये सोचो कि यहां पे अगर प्रीवियस एंट्री की बात करें, इसके लिए प्रीवियस बब्बन के लिए प्रीवियस एंट्री अमित की है, अमित की जो एंट्री है उसका की क्या है, उसका ये की है, ठीक है, ये नहीं है, ये तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से था, ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा ये की है, तो मतलब यहां पे जो नई की रहेगी वो ये रहेगी। तो अब इस नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसका क्या की हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, now after understanding the logic behind the construction of these keys, we'll move on to some jargons that we will use in this lecture. तो जो ये बॉक्स है इसे हम एक नाम दे देते हैं, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इस बॉक्स को हम ब्लॉक बोलेंगे अब से। अच्छा, तो जो पहला वाला ब्लॉक था जो पहला वाला ब्लॉक था आरुषि का, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक को हमेशा जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। ये जितनी भी कीज हैं, की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको हम क्या बोलेंगे, हैश। कोई भी हैश को एक लॉजिक यूज करके या बोल सकते हैं एक एल्गोरिदम यूज करके डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जार्गन्स जो हैं ये क्लियर हो गए हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अभी we'll discuss about the second entry which is the second block। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नाम अपडेट कर दिया है, दिस इज नो मोर एन एंट्री, दिस इज अ ब्लॉक। तो इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लॉक और दिस इज द हैश ऑफ प्रीवियस एंट्री। यहाँ पे बस मैंने बता रखा है कि हाउ हैव वी कंस्ट्रक्टेड द हैश फॉर this particular block। तो hash for this particular block would be constructed या would be derived on two parameters। First would be the data of the current block, मतलब ये पूरा का पूरा डेटा, और the hash of the previous block। तो ये पुराने ब्लॉक का जो हैश रहेगा उसके बेसिस पे इस पूरे ब्लॉक का हैश बना दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे यही वाली बात लिखी हुई है, मतलब हम ये वाला स्टेटमेंट बोल सकते हैं, हैश फंक्शन फॉर एवरी ब्लॉक डिपेंड्स ऑन द डेटा विद इन द ब्लॉक एंड द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। डेटा विद इन द ब्लॉक और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक पे डिपेंड करता है इस करंट ब्लॉक का हैश। ओके, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। देखिए, इस ब्लॉक में जो भी डेटा है उसकी वजह से हैश का इतना पार्ट निकल पाया, और जो प्रीवियस एंट्री का या प्रीवियस ब्लॉक का हैश है उसकी वजह से हैश का सेकंड वाला पार्ट निकल पाया। तो आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। चलिए, तो इफ वी सिंप्लीफाई whatever we have learned, we can say that one block contains following components: data within the block, hash of the previous block, and hash of the current block. Hash of the current block is basically based on 1 and 2, data and hash of the previous block, ठीक है। This is the idea, and hash for each block is derived using a certain algorithm। हम इन दोनों के बेसिस पे हैश ऑफ द करंट ब्लॉक को डिराइव कर रहे हैं, और ये जो बेसिस यूज कर रहे हैं इट हैज सर्टेन लॉजिक। कैसे हमने क्रिएट किया, प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने लॉजिक यूज किया वो ये वाला था
कि इतने से हम हैश का आधा पार्ट निकाल लेंगे और जो प्रीवियस की है उससे हम हैश का आधा पार्ट निकालेंगे, नेक्स्ट हाफ निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम भले ही मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बनाया है, बट आई होप यू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट अनलेस देयर इज एन एल्गोरिदम हैश कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। चलिए, तो नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट इज अ ब्लॉकचेन। व्हाट्स अ ब्लॉकचेन? देखिए, ब्लॉकचेन में अब जैसे हमने 3 ब्लॉक्स की बात करी है अब तक, तो ब्लॉक नंबर 1 में क्या था? डेटा था, और ब्लॉक नंबर 1 का हैश था, सिंपल। अच्छा, अब हमने ब्लॉक नंबर 2 की बात करी, उसमें क्या था? डेटा था ब्लॉक नंबर 2 का, ब्लॉक 1 का हैश था और ब्लॉक 2 का हैश था। हैश 1 का ब्लॉक कहाँ से आया? ब्लॉक 1 से आया ऑब्वियसली। और हमने हैश 2 का ब्लॉक कैसे कैलकुलेट किया? डेटा से, ब्लॉक 2 के डेटा से और ब्लॉक 1 के हैश से। ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं। ऐसे ही हमने ब्लॉक 3 का डेटा, हैश ऑफ ब्लॉक 2 और हैश ऑफ ब्लॉक 3 बनाया। हैश ऑफ ब्लॉक 3 हमने कैसे कैलकुलेट किया ये हम जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक 1 का हैश जो है वो ब्लॉक 2 में है, ब्लॉक 2 का जो हैश है वो ब्लॉक 3 में है। और अकेला ऐसा नहीं है कि वो बस वहां पे लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का की कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो दिस इज अ चेन। सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो सीक्वेंशियली एक ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दैट इज वाई वी कॉल दिस अ ब्लॉकचेन, बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स लिंक्ड सीक्वेंशियली थ्रू हैश। प्रिटी क्लियर? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अगर मैं ब्लॉक 1 के डेटा को चेंज करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली ब्लॉक 1 के डेटा को अगर मैंने चेंज किया तो ब्लॉक 1 का हैश चेंज होगा। अगर ब्लॉक 1 का हैश चेंज होगा तो चूंकि ब्लॉक 1 का हैश ब्लॉक 2 में भी लिखा हुआ है तो ब्लॉक 2 का भी हैश चेंज होगा। अगर ब्लॉक 2 का हैश चेंज होगा तो चूंकि ब्लॉक 2 का हैश ब्लॉक 3 में लिखा हुआ है और ब्लॉक 3 का हैश ब्लॉक 2 के हैश से भी डिराइव हो रहा है तो ब्लॉक 3 का भी हैश चेंज होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने ब्लॉक 1 के डेटा को चेंज किया तो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में चेंज दिखने लगेगा। That is why it is considered as impossible to manipulate the data of a block in the blockchain, क्योंकि एक छोटे से मैनिपुलेशन से एक कैस्केड इफेक्ट आ जाता है और उसके कारण सारा का सारा ब्लॉकचेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। इस स्लाइड में आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैंने ब्लॉक 2 के डेटा को चेंज किया, इस पर्टिकुलर डेटा को चेंज किया, तो क्या होगा? ब्लॉक 2 का हैश जो है वो चेंज होएगा। अब ब्लॉक 2 का अगर हैश चेंज हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला हैश भी चेंज होगा। अब ये वाला हैश अगर चेंज हुआ तो चूंकि इन दोनों से मिला के ये वाला हैश बन रहा है तो ये वाला हैश भी चेंज होगा और दिस वुड मूव ऑन, दिस चेंज वुड मूव ऑन। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, जिस भी ब्लॉक का डेटा आपने मैनिपुलेट किया है उस ब्लॉक का हैश और सारे फर्दर ब्लॉक्स का हैश जो है वो चेंज होने लगता है। मतलब आप देख रहे हो कहां पे मैनिपुलेशन हुआ है उसको पिन पॉइंट बताया जा सकता है। मतलब अगर इस डेटा में चेंज किया तो ये और इसके आगे सारे के सारे ब्लॉक्स में फर्क पड़ेगा, तो यहां से ब्लॉकचेन, ब्लॉक नंबर 2 से ब्लॉकचेन खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्लॉक नंबर 3 में मैंने चेंज किया तो ब्लॉक नंबर 3 से ब्लॉकचेन खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर हम इसे एक फिजिकल एनालॉजी से समझना चाहें तो विच वन इज इजी टू डिटेक्ट? इज इट अ ड्रॉप ऑफ स्टोन इन द वाटर और अ रिपल?
आप स्टोन जब ड्रॉप हो रहा है तो शायद इतने आसानी से उस चीज को ना समझ पाओ, लेकिन चूंकि रिपल्स आते हैं तो वो ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन वी मेक अ चेंज इन द डेटा विद इन एनी ब्लॉक, दैट स्टार्ट्स अ रिपल अक्रॉस द ब्लॉकचेन। उसके आगे वो रिपल फ्लो होने लगता है एंड दैट इज हाउ द सिस्टम रिकॉग्नाइजेस कि हाँ भाई कहीं पे मैनिपुलेशन हुआ है। और इसी वजह से ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए अब हम बात करते हैं उस असाइनमेंट की बात करते हैं। तो टीचर ने सिंपल सी बात बोली कि देखो ठीक है, आप चाहो तो असाइनमेंट ना कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग सारे के सारे ब्लॉक्स जो है ना, 676 ब्लॉक्स बनेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, वो सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं उसको हम लोग कंप्यूटर में ही जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हर ब्लॉक का जो हैश बनेगा उसको हम लोग एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से डिराइव कर लेंगे फ्रॉम इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। आप ये सोचो ना, अगर 676 ब्लॉक रहेगा, उसका अगर हमें हैश बनाना पड़ गया ऐसे लिखते लिखते, तो वो तो कितना ही बड़ा हो जाएगा। आप देख ही पा रहे होगे कि विद एवरी ब्लॉक द हैश, द लेंथ ऑफ द हैश इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो हर हैश के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी अगर हम उसको पेन पेपर में बनाने लगे। तो हम लोग ने क्या कर दिया, सिंपल कंप्यूटर में वो एल्गोरिदम फीड कर दिया, वो लॉजिक फीड कर दिया और उस बेसिस पे एक ब्लॉक का हैश बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हैश जो है वो कंप्यूटर में कंप्यूट हो जाएगा हर ब्लॉक के लिए। तो हर वो जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है उसका जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में, ऑब्वियसली कंप्यूटर में रहेगा, तो हम उसे कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर जगह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसको हम कंप्यूटर में एक जगह प्रेजेंट करेंगे, उस प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन को हम लेजर बोलते हैं। लेजर, जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं इस बात को समझ सकते हैं, लेजर कुछ नहीं, एक हिसाब की किताब होता है। तो यहाँ पे भैया कौन सा हिसाब हो रहा है, तो ब्लॉकचेन में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज द हिसाब दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो हर ब्लॉक में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक पर्टिकुलर जगह पे लिख लेंगे। सो दिस कंस्टिट्यूट्स द लेजर। अब वो उसमें क्या रहेगा, उसमें डेटा रहेगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, मतलब सारे के सारे ब्लॉक्स का डेटा रहेगा, और उसमें जो उसका हैश है और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक वो भी रहेगा। ठीक है, कौन सा जेनेसिस ब्लॉक है, कौन सा किस नंबर का ब्लॉक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है और ये पूरी ब्लॉकचेन का जो डेटा है, वो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास रहेगा लेजर में। ठीक है, ओके, तो अगर ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां जहां पे ये वाला स्टार आ रहा है मतलब वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब तो इधर उधर का कहानी है। मेन जो ये सब जो इधर उधर की कहानी है वो तो क्या है, भूसा है, और जो मेन स्टार वाला पॉइंट है दैट इज लाइक प्रोटीन। ठीक है, तो अगर इस लेजर को लेके मैं जितने भी 26 स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 26 स्टूडेंट्स को मैं क्या बोल दे रहा हूं, पीयर्स। ठीक है, दिस इज अ न्यू जार्गन, व्हाट डू आई कॉल देम, पीयर्स। सो देयर आर 26 पीयर्स। ठीक है, पीयर इज नथिंग बट बेसिकली अ फ्रेंड। ठीक है, जो पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, वो मतलब हम उम्र बेसिकली, तो जो साथ में रहता है आपके। तो 26 स्टूडेंट्स हैं तो उनको 26 पीयर्स हो गए, तो मैंने 26 के 26 पीयर्स को ये लेजर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं इस लेजर को डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर बोल सकता हूं। ठीक है, चूंकि ये लेजर पीयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर बोल सकता हूं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ऐड अनदर ब्लॉक टू आवर ब्लॉकचेन। याद करिए अभी मैंने जो जिसमें आप एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको 12 ब्लॉक्स दिखाए थे,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेजर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो 12 ब्लॉक्स के बाद अगर मैं एक नया ब्लॉक ऐड करना चाह रहा हूँ, सो दैट इज 13th ब्लॉक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मेरे को ब्लॉक की जो भी डेटा है उस 13th ब्लॉक में वो लिखना पड़ेगा। वो लेटर क्या है, उसका कलर क्या है, वो किसने लिखा, रोल नंबर उसका क्या है, और उसकी कौन सी बारी है, और टोटलिटी में कितने नंबर की बारी है, उस हिसाब से इस पर्टिकुलर ब्लॉक का। अच्छा, सबसे पहले तो सारा डेटा लिखना पड़ेगा, और फिर इसके बाद जो हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक है मेरे को वो लिखना पड़ेगा। सो दैट वुड बी हैश ऑफ ब्लॉक नंबर 12, और फिर इन दोनों के बेसिस पे मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ हैश ऑफ ब्लॉक 13। टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी। तो हैश ऑफ ब्लॉक 13 कैलकुलेट हो गया। इस कैलकुलेशन को मैं एक एल्गोरिदम के सहारे करूंगा। जिस एल्गोरिदम के सहारे ये ब्लॉक कैलकुलेट हो रहा है इसको मैं प्रूफ ऑफ वर्क कहता हूं। व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क? दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ 13th हैश बेस्ड ऑन एन अप्रूव्ड एल्गोरिदम। ठीक है। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क के बाद क्या होगा? इसको हम सारे के सारे पीयर्स, मतलब 25 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, ये तो दिस वुड ऑब्वियसली बी डन बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। दिस वुड बी डन बाय फॉर एग्जांपल रोल नंबर 13। रोल नंबर 13 के अलावा जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको हम पीयर्स बोलते हैं, उन सबको ये एंट्री जिसमें डेटा है, जिसमें हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक है, जिसमें हैश ऑफ द करंट ब्लॉक है, ये पूरी की पूरी एंट्री इन सारे के सारे पीयर्स को जाएगी। क्या किस चीज के लिए जाएगी? वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। किस चीज का वेरिफिकेशन होएगा? कि भाई जो इसने ब्लॉक नंबर 13 का हैश कैलकुलेट किया है वो सही तरीके से कैलकुलेट किया है या नहीं, उसने एल्गोरिदम अच्छे से लगाया है या नहीं। ठीक है। तो वो इस वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। जब ये उसे वेरीफाई कर देंगे तो वो अपना डिजिटल सिग्नेचर उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगा देंगे। तो मतलब 25 लोगों ने वेरीफाई किया तो 25 लोग अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जब सब कोई अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ इसे दे देगा, इसके बाद ये 13th ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। जब ये 13th ब्लॉकचेन में ऐड होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में 26 के 26 लोगों को दिखाने लग जाएगी। ठीक है। जब तक सब लोगों का डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगा? पेंडिंग अप्रूवल। तब तक वो एंट्री लेजर में भी नहीं दिखाएगा, ना ही वो ब्लॉकचेन में ऐड होएगा। ठीक है, जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक ब्लॉक जो है वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स या सारे के सारे पीयर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही ऐड हो पा रहा है। तो यहां पे जो कंट्रोल है वो किसी एक का नहीं है, वो सब लोगों का है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लेजर इज डिसेंट्रलाइज्ड। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर। ठीक है। चूंकि कंट्रोल सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के पास है इसलिए हम इसे डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द लोकल लेवल, अमंग द लोकल पीपल। तभी वो पंचायती राज वाला सिस्टम और वो अर्बन लोकल बॉडीज वाला सिस्टम कि भैया नीचे वाले लोगों के पास भी पावर होनी चाहिए किन्हीं बातों को लेकर। ठीक है। सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और इसमें हर पीयर के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो देख सकता है कि जो भी ब्लॉक ऐड हो रहा है
वो आफ्टर ड्यू डिलिजेंस ऐड हो रहा है या नहीं, उसमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम फॉलो किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए now this basically whatever is written here in 100 250 words, this is basically the takeaway from this lecture. I want you guys to stop this video or go through these 3 paragraphs and find it out for yourself कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। क्योंकि अगर नहीं आ रही तो यू विल हैव टू रीविजिट द लेक्चर और आपको ये सब समझना होगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या क्या बताया था? राइट फ्रॉम ए टू जेड, different color for each letter, write in turns, one letter in one turn, any order A B C D, Z to A to Z, P to Z, and then A to O, whatever। ठीक है, तो इफ़ वन फेल्स देन ऑल फेल, ऑल और नन। इसीलिए सब लोगों की हालत ख़राब हो रखी है कि भाई अगर कोई भी एक फेल हो गया तो सब फेल हो जाएंगे। तो सारे होशियार बंदे जो हैं वो लगे हुए हैं, होशियार बंदे बंदी जो हैं क्लास के वो लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद वेरिफिकेशन जो है वो 20 साल बाद भी पॉसिबल होना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू कम अप विद अ सोल्यूशन। आप इस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन बनाएं। देखो, अब ऐसा मत करने लगना, ऑब्वियसली मतलब लेट मी नॉट डाउट योर इंटेलिजेंस। आप सब लोग ये तो नहीं करोगे कि कंप्यूटर में जाके कोई एक अच्छा सा एल्गोरिदम वगैरह बनाने लग जाओगे। आपको बस बेसिकली ये करना है, एक रफ पेपर पे ये इंश्योर करना है कि व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन इंश्योर दैट ऑल दीज कंडीशंस आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। और जब आप ये सोल्यूशन बना लोगे और उसमें you'll have to ensure कि whatever you have learned in today's lecture about blockchain technology, आप उसको भी यूज़ में लेके आओ। उसको यूज़ में लेके आने के बाद ही आप जो सोल्यूशन बनाते हो वो सोल्यूशन रेलेवेंट रहेगा हमारे आने वाले लेक्चर के लिए। तो आने वाले लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे विच वुड बी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लेक्चर। और हम बेसिकली बात करेंगे डाइवर्स एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो डाइवर्स एप्लीकेशंस इसके फाइनेंस में होते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ वन ऑफ द पायनियर एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, और अमेजॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रहा है अपने पूरे के पूरे सप्लाई चेन में। ठीक है, तो हम कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम इस पूरे सीरीज को ख़त्म हो जाने के बाद हम लास्ट में इंश्योर करेंगे कि वी हैव सर्टेन लिटरेचर विद अस, लाइक नॉट मोर देन 3 पेजेस, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें ना बहुत ही सधे हुए शब्दों में लिखी हो। तो क्या हो सकता है, उससे आप समझ सकते हो कि जो जिन पर्टिकुलर वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना रहता है, कोई मेंस का फॉर एग्जांपल अगर आप आंसर लिख रहे हो उसमें, या अगर आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें, या अगर आप किसी कोई भारी इंटेलेक्चुअल बंदे से बात कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में अगर आपको अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ गुड command over the jargon that we use in blockchain technology, then you will be able to explain, you will be able to articulate better. ठीक है, तो please stay tuned for the next lecture. Thank you very much.